Hello students, today we are going to learn class 5 chapter number 6 Be My Multiple and I will be your factor. The topic we are going to study here is factors. See, in the previous two videos I have uploaded about multiple and how to calculate the multiples of a particular number. So you watch those videos, you will get the knowledge about multiples. In this videos we are going to study about factors. See, for factors you should also know multiples, so it is necessary and it is recommended that you please watch that videos. Even I'll be providing the link in the description part. Now let us look about factors. Today video I am going to cover page number 96 explanation part. So let us start with page number 96. See, here it is page number 96. What it is told, common factors. See, before beginning for the common factors, you should know what are factors. Okay, factors are actually the number which gets divided by the given number completely without leaving any remainder is called the factor of that number. What I am saying, let us see. So here first of all I have written the definition of factors. What are factors? The number which gets divided by the given number completely without leaving any remainder is called factor of that number. It means whatever number is given, if you are able to divide that given number by a particular number completely without leaving any remainder, then the number is called the factor of the given number. Fine. Say for example, if I want to find out the factor of 4 के फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, तो आपको क्या देखना है कि 4 जो है ना वो कौन कौन सी टेबल में आता है. तो हमें पता है 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है. अच्छा, और कोई टेबल ऐसा है जिसमें 4 आता हो? The answer is no. So you have to understand that number 4 is coming only in 3 tables. 1 4s are 4, 2 2s are 4 and 4 1s are 4. Hence I can say the factors of 4 are 1, 2 and 4. Means these are the numbers in which table 4 is coming. So ये इसके क्या कहलाएंगे? ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे. फाइन. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट फॉर 10, अगर आपको 10 के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि भाई 10 जो है वो कौन कौन सी टेबल में आता है. फाइन. 10 कौन कौन सी टेबल में आता है? तो 10 आएगा आपका 1 की टेबल में. देखो 1 जो है ना वो तो सबका फैक्टर बन जाएगा क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं. तो 1 विल बिकम द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, माइंड वेल. ये लाइन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखनी है. 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा एवरी नंबर का. मीन्स 1 इज कमिंग in one's table, every number is coming. Fine. So 1 will be the factor for every number and the number itself. Say अगर 4 की बात कर रहे हैं तो 4 तो आएगा ही ना. ठीक है, क्योंकि 4 का फैक्टर 4 तो होगा. इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं 10 की तो 10 तो आएगा ही. ठीक है. सो हमने लिखा 1, फिर 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5s are 10. इसी तरीके से 5 की टेबल में भी 10 आएगा, 5 2s are 10 एंड देन फिर 10 की टेबल में भी 10 आएगा, 10 1s are 10. सो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 1 और द नंबर इटसेल्फ होगा ना वो तो सब में आएंगे. फाइन, वो तो सब में आएंगे. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ दैट कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ will be the factor for every number. Fine. So this you have to keep in mind. Then see, I have written here in the important point I have included this, that you have to see that 1 is a factor of every number. ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. देखो, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा आपका? हर एक नंबर खुद का फैक्टर है. तो ये बात सही है. इसका मतलब ये दो चीज़ें जो है आपकी, ये
ये 2 पॉइंट्स है ना, ये तो आपके सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सब में ये 2 पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे. इसीलिए दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कीप इन माइंड वेल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. मेनी टाइम्स दे आर आस्किंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स, दैट दे आर आस्किंग लाइक दिस, डैश इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो आपको आंसर लिखना है 1. फाइन. फिर लोग ऐसा भी पूछते हैं एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ डैश, तो आपको आंसर देना है इटसेल्फ. फाइन. लाइकवाइज दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस. फाइन. नाउ नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे, नेक्स्ट वी हैव टू सी फैक्टर्स ऑफ 25. Now see, the question begins. I hope so everybody is clear with the concept of factors. Factors क्या हैं? वो ऐसे नंबर हैं जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड करेंगे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. मतलब जो रिमाइंडर है ना आपका 0 बचेगा नीचे. सो अब हम मूव करते हैं फैक्टर्स ऑफ 25. इट मीन्स दिस इज द एक्टिविटी विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 96. लेट अस फर्स्ट सी द एक्टिविटी विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 96, देन वी विल प्रोसीड टू सॉल्यूशन. सो लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक. See, here the activity is given, what they are telling, common factors. See, in the previous videos I have explained you how to find out the common multiples. Now, after understanding factors, we will see how to find out the common factors. See what you have to do, write the factors of 25 in red circle. ये आपका रेड सर्कल है, इसमें आपको किसके फैक्टर्स लिखने हैं? 25 के फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है. Now in this blue circle and the factors of 35 in the blue circle, तो आपको ये blue circle में किसके factors लिखने हैं? 35 के blue circle में आपको factors लिखने हैं. फाइन. उसके बाद उन दोनों के जो आपके common factors आते हैं वो आपको इधर purple part में mention करने हैं. Okay, so let's see. Then they are asking the questions which are the factors you have written in the common part, purple part of both the circles. मतलब इधर कौन से factors आपने लिखे हैं वो बताने हैं. These are the common factors of 25 and 35. Now write the factors of 40 in the red circle and 60 in the blue circle. So this is your next question, and let us solve the first question. We will write down the factors of 25 and 35, and we will find out the common factors of 25 and 35. See, this chapter is very important because it is going to play a very important role in your higher standards. In your higher standards you will be getting some more upgradation in these kind of questions. So pay attention in this chapter, and if any kind of doubt arises, you can comment me in the comment section. And please, if you are really liking my video, please like it and share it and subscribe my channel to get more such kind of videos. So let us see what are common factors, the solution of this question. So here is our solution, and see here what we have written is factors of 25. So देखो यहाँ पे ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है इसमें हमने क्या करा है, 25 के फैक्टर्स लिखे हैं. ठीक है. तो देखो 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 25 कौन कौन सी टेबल में आता है. पहले ये खुद में आएगा तो हमने 25 लिख दिया. ये 1 में भी आएगा और 5 में भी आएगा. ठीक है. और 35 के आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो किस में आएगा 35? एक तो 7 में आएगा 35, फिर आपका किस में आ जाएगा 35 विल कम इन द टेबल ऑफ 7, 35, 1 एंड 5. इन 4 नंबर्स में आपका 35 आएगा. फाइन. और ये किस में आ रहा था 5, 25 एंड 1. अब आप इसमें से ही पहचान जाओ कि 5 और 1 ये तो दोनों में आ रहे हैं ना, 25 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं और 35 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं. तो वो आपको मिडिल पार्ट में लिखना होगा. यहाँ पे हमने ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इंडिकेट्स व्हाट, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35. फाइन. तो देखो यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख दिए, रेड सर्कल में लिख दिया 25, 1 एंड 5. 35 के फैक्टर्स हमने लिख दिए 1, 5, 7 एंड 35, जिसमें से 1 और 5 जो थे वो कॉमन फैक्टर्स थे 25 और 35 के. फाइन. और बीच वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसमें इंटरसेक्शन पार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट. ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पार्ट हो जाएगा आपका. और यहाँ पे दोनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखे जाएंगे. ये पर्पल पार्ट है.
सो देखो मैंने इन जनरल यहाँ पे बताया है 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, दीज आर द फैक्टर्स, एंड 35 के द फैक्टर्स विल बी 7 5 द 35 मल्टीप्लाई 1. सो द कॉमन फैक्टर्स विल बी व्हाट 5 एंड 1. ये जो है ना ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेक्स्ट में उसका आंसर रहेगा 1 and 5 आर द कॉमन फैक्टर्स. लेट्स see it has been written here that 1 and 5 will be your common factors. They are asking common part of both the circles. Common part of both the circles will be 1 and 5. You can see here. Now you have to do this activity same by using the numbers 40 and 60. You have to draw two circles and their intersection part also, and one will be your red part, other one will be your blue part. And in red part you have to write down the factors of 40, in the blue part you have to write down the factors of 60, and this between part which is known as the common factor part of both the numbers, you have to write down the common factors. फाइन, ऐसे नंबर्स जो दोनों को डिवाइड करते हों. तो देखो पहले आप 40 के मल्टीपल्स लिखो. पहले आप क्या करो 40 के मल्टीपल्स लिखो. ठीक है, तो देखो 40 कौन कौन से टेबल में आता है आपको ये देखना है. तो 40 है, अगर हम यहाँ पे बात करें 40 देखो सबसे पहले तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हमने 1 लिख लिया. 2 के टेबल में आएगा ना 40 कभी आता है 2 20 40. ठीक है, सो ये 20 के टेबल में भी आएगा तो हम 20 भी लिख लेते हैं. 3 के टेबल में नहीं आ सकता, 4 के टेबल में आएगा. कब आएगा 4 10 40, तो हमने लिख दिया 4, और 10 में भी आ जाएगा 10 4 40. आपको क्या करना है टुगेदर आप ऐसे करा करो कि दोनों नंबर्स जो है ना वो यहाँ पे फैक्टर्स में हम नोट डाउन कर लेंगे. हम ये क्या लिख रहे हैं, हम ये फैक्टर्स लिख रहे हैं. फाइन, हम ये क्या कर रहे हैं फैक्टर्स लिख रहे हैं. सो ये हो गया. अब देखो 5 के टेबल में 40 आता है, हाँ आता है. 5 8 40, तो 5 और 8 दोनों ही फैक्टर्स बन जाएंगे ना. फाइन, देन इट इज़ कमिंग इन एनी अदर टेबल. 5 के अलावा ये अब कौन सी टेबल, कोई भी टेबल यहाँ पे बाकी है ओके हमारा लिखने का नहीं बाकी है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40. 1 2 5 8, 1 2 5 8 10 20 and 4. 1 2 4 5 8 10 20. फाइन, एंड लास्ट वन देखो, लास्ट वन एक हमारा क्या हो जाएगा एंड द नंबर इटसेल्फ, जो मैंने आपको बात करी थी. ठीक है, तो ये वाले आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 40 के. इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिखे गए हैं 8 40, एंड जो कॉमन फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं ना, कॉमन फैक्टर्स वो ये रहे 1 2 4 5 10 20. मतलब इन सारे नंबर से आपका 40 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 8 और 40 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा. अब आपको फैक्टर लिखने हैं 60 के. तो देखो 60 के आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 30 60. ठीक है, 3 के टेबल में आएगा, यस 3 20 60, जैसे हमने प्रीवियस में करा था बस उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है. फाइन, 4 के टेबल में कब आएगा 4 15 60 आ जाएगा आपका. फाइन, अगर देखो आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप सिंपल डिवाइड कर लो 60 को 4 से तो भी हो जाएगा. ठीक है ना. सो क्या हो जाएगा हमारा 60 1 2 30 3 20 4 15 5 12 6 10. चलो, सो दीज आर अवर, एंड लास्टली आपका 60 आ जाएगा. ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हैं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 60. नाउ लेट्स सी इन द सर्कल. सो लुकिंग इन दिस सर्कल वी कैन सी दैट द फैक्टर्स आर 1 2 4 5 10 20 3 6 12 15 30 and 60. These all are the factors of 60. You just need to find out the common factors. So common factors जो हैं वो ये हमारा पर्पल पार्ट जो है ये वाला,
इसको, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है जहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं उसके फैक्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये सारे जो हो जाएंगे ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो सबसे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स की हम बात करें, सो दे आर व्हाट 1 2 5 4 10 एंड 20। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 40। अब इसमें से जस्ट आपको देखना है कि ये जो इतने नंबर हैं इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो बिगेस्ट नंबर हमारा है 20। फाइन। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा 1। Fine. So see, this was all about today. Now in the next video I am going to cover about factor tree method. Right now till here we are keeping, and just comment me in the comment section that really, if you really liked my video, if you really enjoyed my video, and if you have understood my video, then do comment in the comment section. And if you have any queries, you can also comment me in the comment section. If you really enjoyed my video, please like it, share it and subscribe it to get more such videos. Thanks for watching.